So last time one horoscope was left over, so we can start with that only. I think this one given by Dr. Shobha Sharma. I think she's not there, na? So date of birth is 22nd September 1996, 1940, and the place is Chennai. And she wants to know about health, marriage, and career. So let us see. This is the Lagna chart of this horoscope. So what is the position here? Let us see the degrees वगैरह पहले. So if you see the degrees seems to be okay. And Rashmi Kiran is 9.96, which is quite less also. And if you see the Shadbal, and Shadbal, particularly the Moon and Mars, they appear to be quite strong. And others are also okay. But particularly the Saturn is slightly weak. Otherwise, all planets are, I think, sufficiently strong also. Now, let's see the Lagna chart. So what does it indicate? Let's talk about positive point first. कि positive points क्या है इसमें? Jupiter का placement, sir. Jupiter is very well placed in the 9th house in its own sign. Very good. और इसके ऊपर aspect किसका है Jupiter के ऊपर? Saturn का. Saturn का. And Saturn is the lord of 10th house also. Yes, so sir. somehow Yes, sir. Lord of 9th and 10th, they are getting associated. So that is a positive point. Saturn 12th में sir own house में है, own राशि में है. Own राशि में कहाँ है? Sorry, हाँ ठीक है. Saturn is Sir, not in. इस हाउस का कारक है Saturn. हाँ. Positive point बताइए पहले, मतलब let's talk about positive points first. सर जो लगन लॉर्ड है वो 4th हाउस में है. हाँ. लेकिन वो Lord नीच का है. हाँ, वो डेबिलेटेड है. नीच का है, बट एक देखिए नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा. जब भी हम कोई भी नीच का प्लैनेट देखते हैं तो we should keep in mind or we should examine whether there is a नीच. सर इनका डेबिलेटेड कैंसिल हो रहा है. कैसे? वीनस और मून के दोनों इसमें केंद्र में है. वीनस से क्या मतलब उसका? मार्स की हम बात कर रहे हैं. मार्स का जो डेबिलिटेशन है, तो हाउ इट इज कंसर्न विद वीनस? नहीं, इसमें सैटर्न आएगा. सॉरी, सैटर्न और मून का देखना था. ठीक है. एनीवन एल्स? मार्स का जो डेबिलिटेशन है कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है. अच्छी तरह देखिए राजेश जी. So Mars का exaltation is Capricorn. And Capricorn उसमें मून बैठा है. मून है. But उससे कोई other than तो कैंसिलेशन हो गया ना? aspect, is it? Actually, there was one condition, and that was the first condition. If the planet and its sign dispositor, both are in Kendra, either from the ascendant or from the moon, Yes. then it results into the niche bhang actually. तो यहाँ पर जो planet है मार्स है और sign dispositor moon है, तो दोनों के दोनों आपस में दोनों लग्न से भी और मून से भी केंद्र में है. तो ये नीच भंग हो जाता है. तो यू कैन से मार्स इज वेल प्लेस्ड. सर ये क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से बोलिएगा. उसमें जो हम लोगों ने नीच भंग राजयोग की बात की थी, तो उसमें पहली कंडीशन थी कि जो प्लैनेट इन डेबिलिटेशन एंड इट्स साइन डिस्पोजिटर, इफ बोथ आर इन द केंद्रा
either from the ascendant or from the moon, then it results into the नीचभंग राजयोग. तो यहाँ पर जो planet in debilitation तो Mars हो गया. Planet in debilitation is Mars, and secondly the sign dispositor is Moon. Moon. So both are in Kendra from हाँ. ascendant as well ठीक as है. from Moon. तो इसलिए जो Mars का जो है नीचभंग हो गया. इसमें योग बन रहा है फर्स्ट का लॉर्ड और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड बोथ आर कंजक्ट. केंद्र और कोण का लॉर्ड इकट्ठे आ गए. हाँ, फर्स्ट एंड सेवेंथ हाउस लॉर्ड आर मार्स एंड वीनस, सो दे आर टुगेदर. बट वीनस के साथ मार्स अच्छा नहीं माना जाता सर. वीनस इज एफ्लिक्टेड विद मार्स एज वेल एज, और कौन सा प्लैनेट देख रहा है उसको? मून भी देख रहा है सर. सर केतु देख रहा है. केतु देख रहा है. केतु देख रहा है और मून जो है वो अपने साइन को देख रहा है. मून जो है वो अपने साइन को देख रहा है. तो इससे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मेलिफिक एंड बेनिफिक प्लैनेट्स. हम ये नहीं कह सर सकते. यहाँ जुपिटर का भी इफेक्ट आ रहा है. जुपिटर का कहाँ आ रहा है? ओके हाँ. जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं आ रहा. नहीं आ रहा. अंकल जस्ट टू क्लैरिफाई, फर्स्ट एंड सेवेंथ के लॉर्ड्स आर कंजंक्ट, उसमें क्या योग बनता है? नहीं, फर्स्ट इज नोन एज ए त्रिकोण हाउस आल्सो. सो लॉर्ड ऑफ quadrant and the trine, they are together, it makes a Raj Yoga actually. I see. Supposed to be a good position. What else? Ketu well placed. Rahu and Ketu, they are well placed. That is supposed to be the best position of Rahu and Ketu. So position of Rahu and Ketu is quite good, because Rahu in the 6th house and Ketu in the 12th house is supposed to be a very good position. Or ये तेरी हवा है तो ये वाली तेरा से भूल गया. there is an exchange of these two. Yes sir. Sun and Mercury. Sun and Mercury, they are exchanging their houses. So it again is a good position of makes a Raj Yoga actually. Anil ji, why it is good position? Exchange है ना एक ये. Exchange of any two planet, it makes a Raj Yoga. Okay. Yeah, exchange of any two planets. Immaterial Sir, weather is 6, 8, 12. Yeah. सर मेरा एक यहाँ पे डाउट है. मैंने एक बुक में पढ़ा था, जैसे 6th, 8th या 12th के लॉर्ड अगर एक्सचेंज करते हैं आपस में तो वो अच्छा योग नहीं मानते हैं. नहीं, 6, 8, 12 के आपस में कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं? नहीं, 6, 8, 12 के जो लॉर्ड है अगर केंद्र या ट्राइन से वो एक्सचेंज होते हैं तो वो अच्छे योग में नहीं आते. नहीं, देखिए, रिजल्ट्स में बी समथिंग एल्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर दशा, बिकॉज इट्स अ लॉर्ड ऑफ 6 और 8 and 12. बट any exchange, whatever may be, it may be with any house actually, with any planet, it forms a Rajयोग. राजयोग तो बनता ही बनता है exchange होने से. रिजल्ट की बात नहीं कर रहा मैं, but it makes a राजयोग. क्योंकि हो सकता है कि जब हेलो राजयोग हमेशा अच्छा होना चाहिए. हाँ, राजयोग मतलब the life of the person will be above the normal if even one exchange is there. अगर 2 exchange हैं तो definitely it is much more above the normal. और 3 exchange हैं तो इंदिरा गांधी है वो तो फिर. और यदि सब 6 और 8 में एक्सचेंज हुआ तब 6 और 8 का एक्सचेंज होगा, वो भी अच्छा है. वो अच्छा इसलिए है कि वो जो 2 नेगेटिव हाउसेस हैं उनके सिग्निफिकेशंस आपस में डैमेज हो जाते हैं. ओके. तो देखिए, रिजल्ट का जहां तक सवाल है कि मे बी कि उस प्लैनेट की दशा जब आएगी, क्योंकि 6 का लॉर्ड है, या जैसे मान लो यहाँ मरकरी 6 का लॉर्ड है, तो हो सकता है दशा ठीक ना हो, लेकिन जो एक्सचेंज अगर एक बार हो गया तो वो इंडिकेट ये तो करता ही है कि राजयोग तो है हॉरोस्कोप में जो है.
ओके सर। या और थोड़ा सा इसको भी देखते हैं, नवान चार्ट वगैरह को क्या पोजीशन है यहाँ पर। Uncle, just one more thing on the exchange piece, just to जी। clarify. Exchange means the lords are posited in the house Of each other. of each This, other. Lord of this house is here and Lord of this house is here. Got it, got it. So that is the exchange. You see here actually this Navan chart. So what is the position in the Navan chart? या इसको यहाँ बना देते हैं, let us make it here. This is Navan chart. नवान चार्ट में अगर हम लग्न को देखते हैं तो लॉर्ड ऑफ लग्ना इज इन द 9th हाउस, दैट इज अ गुड पोजीशन. जुपिटर इज वेल प्लेस्ड, इट इज एस्पेक्टिंग दिस 8th हाउस आल्सो. सैटर्न भी आप देख रहे हैं एक्सॉल्टेड है और सन मून वगैरह सब उपाच्य स्थान में प्लेस्ड है. तो फ्रॉम नवांश एंगल इट्स अ गुड पोजीशन, इट्स नॉट अ बैड पोजीशन एक्चुअली. सैटर्न और वीनस का एक्सचेंज है सर. एक्सचेंज हम नहीं देखते डिविजनल चार्ट में. ओके. हाँ, डिविजनल चार्ट में एक्सचेंज नहीं देखा जाता एक्चुअली. और दशांश चार्ट देखिए, ये दशांश चार्ट है और दशांश चार्ट में हमने देखा था कि मंगल वहां पर 4 नंबर में था, नीच का था. तो हियर आल्सो मंगल इज इन द साइन नंबर 4, सो मंगल बिकम्स वर्गोत्तम एज फार एज दशांश चार्ट इज कंसर्न. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्गोत्तम हो जाता है एक्चुअली में. इसका क्या सिग्निफिकेशन होगा फिर अंकल इन दशांश चार्ट? हाँ, दशा मीन्स कि whenever dasha of Mars will operate, it will give good results concerning profession. क्योंकि ये D10 चार्ट में या दशमांश चार्ट में वर्गोत्तम हुआ है, it means whenever dasha of Mars will operate, it will give very good results as far as career is concerned. सैटर्न की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है सर. सैटर्न का प्लेसमेंट अच्छा है, बट व्हाट वी सी इज these two things. लगन लॉर्ड इज लगन लगन कहाँ पर है और सन का प्लेसमेंट 6th कैसा house. है, दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. तो इसका जो लग्न के ऊपर का, लग्न का लॉर्ड अपने साइन में है, आप कह सकते हैं उपाच्य स्थान में है, उसके ऊपर जुपिटर मरकरी दोनों का एस्पेक्ट भी है. तो लग्न लॉर्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन दिस केस. व्हाट अबाउट पोजीशन ऑफ सन? सन भी उपाच्य स्थान में है, तो सन भी हम कहेंगे कि इट्स नॉट अ बैड पोजीशन, इट इज ओके, इट्स अ गुड पोजीशन ऑफ सन आल्सो. और मैलेफिक के साथ में है, मार्स के साथ में. ना, एक मैलिफिक्स से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली में. और इसमें अगर हम देखें तो वैसे भी जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो यहाँ पर आ रहा है, इसके इस साइन के ऊपर एक तरफ जो है इसके. तो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट एक्चुअली. तो इट्स नॉट ए, हम नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा भी है लेकिन खराब भी नहीं है. इसको ठीक केतु ठीक भी देख रहा है. हाँ जी, केतु भी देख रहा है इसको, हाँ, एस्पेक्ट कर रहा है. केतु भी देख रहा है. तो उपाच्य स्थान में होने की वजह से थोड़ी सी उसको स्ट्रेंथ मिलती है, बट इट्स नॉट सो गुड कि हम कहें कि बहुत अच्छा स्टेटस मिलेगा, बट ठीक ठीक है मतलब. अंकल आपने एक चीज बोली कि अगर जुपिटर इज एस्पेक्टिंग द हाउस राइट नेक्स्ट टू इट, उससे भी एसोसिएशन बन जाता है फिर? बिल्कुल, अगर किसी भी प्लैनेट के इधर या उधर भी कोई अगर पॉजिटिव या नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं तो दैट आल्सो मेक्स अ डिफरेंस. अंकल एस्पेक्ट भी काउंट करते हैं फिर उसमें? नेचुरली एस्पेक्ट भी. जो हम लोगों ने जो लग्नादि योग देखा था, तो लग्नादि योग में यही था कि जब सन मून सॉरी मरकरी वीनस जुपिटर जब तीनों इन हाउसेस में होते हैं, 6th 7th 8th हाउसेस में, तो दैट मेक्स द लग्नादि योग, बिकॉज यहाँ से इसको एस्पेक्ट करता है, यहाँ से इसको एस्पेक्ट करेगा, यहाँ से इसको करेगा. करेक्ट करेक्ट. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लग्न के साथ इस हाउस में जुपिटर और मरकरी का एसोसिएशन है और वीनस भी उसको देख रहा है. तो ऑल 3 बेनिफिक प्लैनेट दे हैव एन एसोसिएशन विद द लग्ना, so that's why this makes the lagna strong. Got it, got it. Yeah. अंकल दशांश में 10th हाउस की स्ट्रेंथ भी देखते हैं?
नहीं, स्ट्रेंथ हम नहीं देखेंगे दशांश चार्ट में। हम लोगों ने यही कहा था कि जो 10th हाउस में प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू। या तो दशांश में जो है आप कह सकते हो कि मंगल जो है वो वर्गोत्तम है। हाँ, and sun is decent. राइट। और बताइए, इनका क्या क्वेश्चन है अंकल? दिस वाज जनरल थिंग एक्चुअली, हेल्थ एंड मैरिज एंड प्रोफेशन। इनका हेल्थ तो अच्छा रहना चाहिए बिकॉज राहु जो है 6th हाउस में है। देखिए बताइए कैसे रहना चाहिए। एट्थ हाउस से देखेंगे अंकल हेल्थ, मतलब लॉन्जिविटी। हाँ, लॉन्गिविटी तो 8th हाउस से देखते हैं। लग्न इज स्ट्रॉन्ग, एट्थ हाउस में कैंसल्ड, डिबिलिटेटेड, मतलब नीच भंगराज योग हो गया है मार्स का। नहीं, वो तो ठीक है कि जो मार्स इज द लॉर्ड ऑफ लग्न आल्सो, सो इट्स नॉट ए मैलेफिक प्लैनेट। इट्स नॉट ए मैलेफिक प्लैनेट। बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान करिए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सन। तो सर सन राहु के साथ है तो कहीं ना कहीं वो वीक हो गया सन। राहु के साथ ही नहीं, और भी देखिए, और सैटर्न भी देख रहा है। हाँ सैटर्न भी एग्जैक्टली। देख रहा है। हाँ, That तो that इनको बोन that से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। that is the main problem कि सन जो है is badly afflicted, 6th house is badly afflicted, 12th house is badly afflicted। ये जो 6 और 12 हाउसेस हैं ये इस हॉरोस्कोप में, बोथ आर बैडली अफ्लिक्टेड, और उनके ऊपर कोई भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, एक भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं है। दे आर अफ्लिक्टेड। राहु के 6th हाउस में पोजीशन और केतु के 12th हाउस में पोजीशन अच्छी होती है। व्हाट इज दिस? हाँ, अगर वो अफ्लिक्टेड नहीं होते तो, अगर हम ये सन की पोजीशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सन जो है इट इज अफ्लिक्टेड विद सैटर्न एंड राहु बोथ। सन जो है दैट इज अफ्लिक्टेड विद सैटर्न एंड राहु, and similarly Saturn is also afflicted with the all malefics। तो 6th हाउस का जो मतलब पर्टिकुलरली जो सन का एफ्लिक्शन है, दैट इज नॉट गुड पहली चीज। तो अंकल हेल्थ सन से देखते हैं फिर पहले। नहीं हेल्थ 6th हाउस है। 6th हाउस से हम लोग हेल्थ के बारे में देखते हैं, और 6th हाउस एफ्लिक्टेड है काफी, एंड दिस इज नॉट ए गुड पोजीशन ऑफ 6th हाउस एज वेल एज द पोजीशन ऑफ सन। हम कहेंगे सन की पोजीशन भी अच्छी नहीं है और 6th हाउस की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, और साथ में 12th हाउस की भी पोजीशन अच्छी नहीं है, इसके ऊपर भी कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। और इवन अगर हम 2nd हाउस को भी देखें, इस हाउस को, तो इसके ऊपर भी सैटर्न और राहु का एस्पेक्ट है, इसके ऊपर भी कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, इसके ऊपर भी कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है। तो ये जो 3 हाउसेस हैं, पर्टिकुलरली 6 and 12 हाउसेस should not be so bad actually, and that too Sun and Saturn both are badly afflicted। Which type of health problem it will? देखिए सन जब दो चीजें हैं, पहले तो यहाँ 6वां नंबर साइन है, 6 साइन। तो 6 साइन बेसिकली जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज लिवर कह सकते हैं, लिवर कह सकते हैं, या द बैक पोर्शन जो है, बैक। और दूसरा सन हम एफ्लिक्टेड कहेंगे तो सन नेचुरली ये सब हार्ट वार्ट की प्रॉब्लम तो देता ही है एक्चुअली। और अब पता नहीं शी इज नॉट देयर एक्चुअली, बट सन रिप्रेजेंट्स की फादर के लिए भी अच्छा नहीं है। फ्रॉम जैसे फादर का सुख की हम बात करेंगे तो दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। सन जब इतना एफ्लिक्टेड हो जाता है एक्चुअली। और
अब देखिए जो दशा चल रही है, दशा जो ऑपरेट हो रही है, राहु की दशा हो रही है 16 से, और नेचुरली इट्स डैमेजिंग बिकॉज इसने सन को, सैटर्न को, दोनों को अफ्लिक्ट किया हुआ है बुरी तरह से जो है। तो ये दशा जो ऑपरेट हुई है इस पीरियड से, ये रियली खराब दशा है। और अभी जो ऑपरेट होने वाली है वो राहु में शनि की दशा ऑपरेट होने वाली है, राहु में शनि। और राहु में शनि अगर आप देखेंगे इसमें तो ठीक है 6 और 12 में है। नवांश चार्ट में क्या पोजीशन है? राहु एंड शनि, ये 6-8 पोजीशन है। राहु यहाँ पर है और शनि यहाँ पर है। बट तो सर शनि यहाँ पे एक्सॉल्टेड है। हाँ, बट आपस में 6-8 पोजीशन है। हाँ 6-8 तो है। वो दैट इज नॉट ए गुड पोजीशन। और दशांश में भी देखें अगर हम, शनि यहाँ पर है और राहु यहाँ पर है, तो यहाँ भी 6-8 पोजीशन अगेन है। 6-8। तो दोनों जगह जो है वो 6-8 पोजीशन अंकल है। ये पोजीशन फिर हमको दोनों नवांश एंड दशांश से देखनी पड़ती है टू मेक नहीं, श्योर कि सही। व्हाट वी मेंट टू से एक्चुअली कि जब ये जैसे नवांश में 6-8 पोजीशन है, तो इट मींस फ्रॉम द मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट गुड। दशांश में 6-8 पोजीशन है, फ्रॉम द कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू इज I नॉट see. गुड, दैट दशा दैट इज बीइंग ऑपरेटेड। Got it. तो ये दोनों चीजें जो है, ये राहु सैटर्न का जो पीरियड अभी ऑपरेट होगा जून से, तो नाइदर इज गुड फॉर मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू, नाइदर गुड फॉर प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें लगता नहीं है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस पर्टिकुलर टाइम में, बल्कि हेल्थ का ज्यादा खराब होने के चांसेस है। हेल्थ की प्रॉब्लम इस पीरियड में ज्यादा हो सकती है, क्योंकि राहु और शनि दोनों सन को एफिलिक्ट कर रहे हैं। और दूसरा एक और भी बताना चाह रहा था कि whenever this trines, particularly this 5th and 9th houses, they have the association of only benefic planets. Trine houses में आप कह सकते हो कि 5th और 9th houses, if they have only association of benefic planet in Lagna chart and in the Navansh chart also. तो लग्न चार्ट में तो दोनों में बेनिफिक प्लैनेट ही हैं, और लग्न में अगर आप नवांश में देखें, यहाँ भी वीनस है और यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है। तो जब भी 5th और 9th हाउस में लग्न और नवांश चार्ट में सिर्फ बेनिफिक प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं, तो सच पीपल आर रियली ब्यूटीफुल और हैंडसम एक्चुअली। किसी का भी आप देखेंगे तो अगर ये बेनिफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट है 5th और 9th हाउस में, लग्न चार्ट में भी और नवांश चार्ट में भी, तो देखने में कम से कम सुंदर होते हैं ऐसे लोग बहुत। तो ये पोजीशन है। दशा मेरे ख्याल में बहुत अच्छी नहीं है जब राहु शनि का पीरियड ऑपरेट होगा। तो she has asked about career and the health and other thing, but it's not good from any of these aspect actually. और particularly वैसे भी जब राहु शनि दो मेलिफिक प्लैनेट की दशा ऑपरेट होती है, तो वैसे भी बहुत अच्छा नहीं माना गया उसको। अनिल जी, इसमें मैरिज अर्ली होगी, डिले होगी या नॉर्मल होगी? बताइए, आप बताइए हमारे हिसाब से इफ यू सी D9 चार्ट, लेट अस सी D9 चार्ट। इसमें फर्स्ट का जो लॉर्ड है वीनस 9th हाउस में बैठा है, दैट मींस इट शुड बी नॉर्मल एज में मैरिज होनी चाहिए। देखिए, हमने कहा था कि जब लग्न का लॉर्ड केंद्र में होता है तो मैरिज बहुत जल्दी होती है। यस। और जब लग्न का लॉर्ड ट्राइन में होता है तो नॉर्मल, मतलब जैसे आजकल होती है 28, 29, 30 साल में, उस टाइप से मैरिज होती है। और वैसे भी हाँ, और वैसे भी अभी इस पीरियड में तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है। ये जो राहु शनि का पीरियड है 24 तक, तो ये जो बर्थ है वो 96 का है, तो 28 तो अपने आप ही हो जाएगा। तो अनिल जी, कौन सी दशा में मैरिज होगी? राहु, मरकरी? बताइए किसमें हो सकती है? अब राहु मरकरी का पीरियड आएगा जब, एक लेट अस सी। इसको देखिए, जुपिटर देख रहा है मरकरी को यहाँ पर। यस। और मरकरी का प्लेसमेंट भी अच्छा है 5th हाउस में।
तो उस टाइम तो है ही है, मतलब हो ही जाएगी बिल्कुल जो है, जब ये जुपिटर ऑलरेडी देख ही रहा है, तो राहु मरकरी पीरियड विल बी गुड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. Uncle, just a clarification, Mercury's house placement moves by 1, right? Moves to 6th house. हाँ, राशि में रहेगा लेकिन 6th हाउस में होगा, करेक्ट? हाँ, बट जब हम एस्पेक्ट वगैरह देखते हैं तो सब इसी से देखते हैं, लग्न राशि चार्ट. से देखें. या वैसे तो 6th हाउस में चला जाएगा तो लेकिन जब हम एस्पेक्ट वगैरह देखते हैं तो इसी से देखते हैं. फिर मरकरी के जो रिजल्ट मिलेंगे वो 6th हाउस के मिलेंगे. माने कि हेल्थ के ऊपर एनिमीज के ऊपर हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो 6 and 12 हाउसेस हैं, जब दोनों इतने खराब होते हैं ना, तो देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द लाइफ एक्चुअली, लॉट ऑफ हर्डल्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाता. बट कुछ अच्छे पॉइंट हैं, जैसे कि जुपिटर यहाँ पर है तो इट प्रोवाइड्स द प्रोविडेंशियल हेल्प, कि जब बहुत परेशानी होती है तो समहाउ वी गेट द हेल्प ऑफ द गॉड आल्सो. तो जुपिटर का प्लेसमेंट अच्छा होने से दैट इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट. अदरवाइज अगर जुपिटर यहाँ पर नहीं होता तो फिर पोजीशन कुड हैव बीन एंटायरली डिफरेंट एक्चुअली, क्योंकि ये जो 6 and 12 हाउसेज जो इतने खराब हो रहे हैं तो ये काफी खराब कर देते हैं एक्चुअली. तो इसमें एक तो जुपिटर का प्लेसमेंट ठीक है, और लग्न लॉर्ड भी जो है उसका प्लेसमेंट भी ठीक है, और वर्गोत्तम भी हो रहा है दशांश चार्ट में. और इस हाउस को पर्टिकुलरली आप देख रहे हैं कि 5th and 9th हाउसेस, ये दोनों हाउसेस ठीक हैं, 5th और 9th हाउस. तो ये एक तरह से मतलब दे आर प्रोवाइडिंग विद प्रोविडेंशियल हेल्प एक्चुअली. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है. ठीक है राजेश जी? हाँ जी, ठीक सर. एनीथिंग एल्स? चलिए नेक्स्ट करते हैं. This is given by Bhavna. I think she is there. Yeah, I'm here, uncle. Yes. Yeah. बताइए इसमें. ये डिग्री है प्लैनेट्स की, and you can see the Shadbal also. Sun का Shadbal देखिए, in place of 5 it is 4.9. Moon is strong, Mars is strong, and all other planets, they are just normal, they are just below the requisite strength actually. But ये दो planet हैं, Moon and Mars, they are quite strong, these two planets. और रश्मि किरण हमने देखा यहाँ पर 15.51 है. अब now you see this Lagna chart. Lagna chart में now you can tell me positive points as well as, first we can discuss the positive points. हंस योग बन रहा है जैन साहब. Pardon? जुपिटर से हंस योग बन रहा है 3rd हाउस में. 3rd हाउस में हंस योग कैसे बनेगा? जुपिटर 9th साइन में है. हाँ, बट केंद्र में होना केंद्र चाहिए. में नहीं है. केंद्र में नहीं है. केंद्र में कोई भी प्लेनेट नहीं है सर. हाँ, फर्स्ट और 7th का लॉर्ड अगेन कंजक्ट है इसमें भी. मार्स और वीनस कंजक्ट है. ठीक है, वेरी गुड. जुपिटर अपने हाउस में है. जुपिटर अपने साइन में है. वेरी गुड. करेक्ट. एंड मार्स भी अपने साइन में है. मार्स भी अपने साइन में है. वेरी गुड. और कोई भी कंबस्ट नहीं है इसमें से. जुपिटर एंड राहु अगर आप देखेंगे तो सन 11 डिग्री है, जुपिटर 23 है और राहु 23 है. तो कोई अफ्लिक्शन नहीं है. इनमें डिग्रीज में कैसे आप क्या इंटरप्रिटेशन होगा अंकल आपका? डिग्रीज आर ओके एक्सेप्ट मार्स. बट आपने देखा कि ये मून और मार्स की डिग्री कम लग रही है यहाँ पर. बट दीज आर द टू प्लैनेट व्हिच आर वेरी स्ट्रांग इन योर हॉरोस्कोप. अनिल जी, 1st और 9th का लॉर्ड भी कंजक्ट है. 1st और 9th का लॉर्ड. 1st और 9th का लॉर्ड वीनस एंड मरकरी. वेरी गुड. सो दिस इज अनदर राजयोग बन गया. हाँ, तो एक ये राजयोग बना, एक ये राजयोग बना.
और सर इनकी लव मैरिज कह सकते हैं, 7th और 1 का कंजक्शन है तो। 7th और 7th, फर्स्ट हाउस और 7th हाउस का कंजक्शन है ना। नहीं, 1st और 7th से लव मैरिज का क्या मतलब है? 5th एंड लग्न का होता है, 5th एंड लग्न तब पॉसिबिलिटी होती है। अनिल जी, इसमें सैटर्न योग कारक हुआ ना। वेरी गुड। हाँ, सैटर्न इज ए योग कारक प्लैनेट, इज अ लॉर्ड ऑफ ट्राइन एज वेल एज क्वाड्रेंट, सो लॉर्ड ऑफ क्वाड्रेंट एज वेल एज ट्राइन, तो सैटर्न बिकम्स ए योग कारक प्लैनेट इन दिस केस। और सैटर्न 8th हाउस में बैठा, वो भी अच्छा है, अपना ही कारक है ना 8th हाउस का सैटर्न। हाँ, लॉन्गेविटी का है, और अब ये 10th हाउस को देख भी रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये 10th हाउस को देख भी रहा है। अंकल, योग कारक का क्या इंटरप्रिटेशन हुआ? योग कारक इज लाइक ए राजयोग कारक प्लैनेट, इट गिव्स यू, particularly Saturn, it gives you a very good status. It's better than an exalted planet. I see. Yeah. और तो कुछ पॉजिटिव नहीं लग रहा अंकल। देखिए पॉजिटिव है या नहीं है। सर जो सन और जुपिटर भाग्य स्थान को देख रहा है तो इनका लक बहुत अच्छा होगा। सन जुपिटर दोनों भाग्य स्थान को देख रहे हैं। जुपिटर तो चंडाल योग में है सर, राहु साथ है। जुपिटर राहु जो है वो चंडाल योग, चांडाल योग बना रहा है। बट सर वो मून से हाँ केंद्र में आ गया तो कोई डेविलेशन नहीं हो गया इनका? हाँ, नहीं, मून से केंद्र में है ही है, और वैसे भी जुपिटर अपने साइन का है, और जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, इट्स नॉट ए वीक प्लैनेट, तो वो जो गुरु चांडाल का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है एक तरह से, उतना नहीं रहता एक्चुअली में। बट यहाँ पर जो जुपिटर एंड राहु है काफी पास पास हैं, तो थोड़ा सा है, बट जुपिटर बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उसको हम कह सकते हैं कि उसका इफेक्ट जो है थोड़ा कम हो जाता है। So अंकल, गुरु चंडाल की implication यही है कि the person can become नास्तिक, bigot or नास्तिक। हाँ, I don't believe in the existence of God, that's all. अच्छा, राहु के ऊपर कोई impact होता है by being so close to a strong Jupiter? नहीं, it is afflicting Jupiter, not opposite sign. हाँ, Jupiter is always a good planet, but Rahu is afflicting Jupiter. And Jupiter and Sun are aspecting 9th house, as someone just mentioned. हाँ, Jupiter and Sun, so from the fortune point of view is good, but 9th house को देखिए कि कौन कौन से planet उसको देख रहे हैं 9th house को। Jupiter, Mars, Sun, Rahu. 3 malefic planet देख रहे हैं। Yes. Sun, Mars and Ketu is already there. Correct, and Rahu's aspecting. But positive point is कि Jupiter देख रहा है, जैसे Jupiter देखने से it nullifies most of the malefic effect. Otherwise अगर ये तीनों malefic देखते तो it was a bad position. But since Jupiter is providing the protection, only good point is कि Jupiter is providing the protection. Jupiter भी देख रहा है। ऐसे ही अगर हम 5th हाउस को देखें तो 5th हाउस की क्या पोजीशन है? मार्स एंड सैटर्न का एस्पेक्ट है। मार्स, सैटर्न एंड केतु। 3 मैलेफिक का यहाँ भी इन्फ्लुएंस है, लेकिन प्रोटेक्शन कहाँ से मिल रहा है? योग कारक से। योग कारक से। योग कारक उसको देख रहा है अपने साइन को। योग कारक प्लैनेट अपने साइन को देख रहा है, तो दैट इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। ऐसे ही 9th हाउस में भी तीनों मैलेफिक का इन्फ्लुएंस है, बट समहाउ गेटिंग प्रोटेक्शन। इसका मतलब इट इंडिक। और दूसरा चीज ये देखिए कि ना तो केंद्र में कोई प्लैनेट है ना त्रिकोण में कोई प्लैनेट है।
बट सर कहते हैं कि अगर केंद्र और त्रिकोण में ना हो तो फिर ये कोई बहुत अच्छी कुंडली में नहीं आते, ऐसा है क्या? हाँ, अगर केंद्र त्रिकोण में कोई प्लैनेट नहीं होते तो इट इंडिकेट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द लाइफ। यस सर। यू हैव टू। अनिल जी, हाँ, इसमें 8th की पोजीशन कैसी है? 8th हाउस की मार्स देख रहा है, सैटर्न बैठा हुआ है। मार्स सैटर्न है, बट मरकरी वीनस का भी एस्पेक्ट है, और वीनस नॉटिफाई इसका कर देंगे। यहाँ ये देखिए ना, वीनस अपने साइन को देख रहा है यहाँ पर, तो ये कई सारे पॉजिटिव योग हैं। वीनस अपने साइन को देख रहा है, सैटर्न अपने साइन को देख रहा है, तो ये काफी पॉजिटिव योग हैं। पर्टिकुलरली जो 5वें घर में और 8वें घर की जो आप बात कर रहे हैं, तो एक तो सैटर्न है लॉन्गेविटी का कारक वहां पर, पहली चीज, और दूसरा ये 2 बेनिफिक प्लैनेट भी देख रहे हैं, और वीनस अपने साइन को देख रहा है, तो इसलिए जो है ये 8th हाउस इज गुड, 8th हाउस इज नॉट बैड एक्चुअली। और इसका लॉर्ड वीनस है, और वीनस भी लग्न का भी लॉर्ड है इस केस में, तो फ्रॉम एनी एंगल इज नॉट बैड एक्चुअली। और अनिल जी, जनरल केस में यदि 8th हाउस को सैटर्न बैठा है तो स्पॉइल करता है ना, इवन इफ इट इज योग कारक। स्पॉइल क्यों करेगा? सैटर्न इज द सिग्निफिकेटर ऑफ 8th हाउस। 8th हाउस में तो बेस्ट पोजीशन है सैटर्न की। इट्स अ वेरी गुड पोजीशन, और यहाँ से ये देखिए ना 10th हाउस को देखता है, it gives you very good professional status. That is the main thing. Apart from longevity, it has an aspect on 10th house. पर सर एक चीज बताइए, सैटर्न जहाँ देखता है वहां तो खराब करता है। ये योग कारक। ओके, अच्छा, योग कारक प्लैनेट, अगर ये सैटर्न या नीच का होता या कुछ मेलिफिक होता, फिर हम कहते हैं कि खराब करेगा 10th हाउस को। ठीक है। बट सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ स्टेटस इफ इट इज वेल प्लेस्ड। तो सैटर्न तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और 8th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है इस इंस्टेंस में। लेकिन मून व्हिच इज द 10th हाउस लॉर्ड इज हैज बीन पॉजिटिव इन द 12th हाउस अंकल, इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा फिर? बस फॉरेन का सेटलमेंट, और क्या। अनिल जी, 8th हाउस को सैटर्न कभी स्पॉइल नहीं करता क्या, कभी भी? नहीं, क्यों नहीं करेगा? अगर सैटर्न खराब हो यहाँ पर तो इट कैन स्पॉइल आल्सो। और जैसे यहाँ पर अगर सैटर्न मंगल होता, बट क्योंकि 2 बेनिफिक प्लैनेट हैं, मरकरी एंड वीनस, तो उसका साथ मिल रहा है, तो इसकी वजह से ये इज नॉट अ बैड पोजीशन एक्चुअली। योग कारक प्लैनेट है, अपने साइन को भी देख रहा है, 10th हाउस को भी देख रहा है, तो इट्स अ गुड पोजीशन ऑफ सैटर्न हियर। अनिल जी, एक और क्वेश्चन, यदि ये सैटर्न योग कारक है, बाकी कुछ अच्छा नहीं है, पर वो 8th हाउस को देख रहा है, तब भी स्पॉइल नहीं करेगा? नहीं, लॉन्गेविटी है, लॉन्गेविटी का कारक है, देख रहा है तो अच्छी बात है। मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से स्पॉइल करेगा? किसको? मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? लॉन्गेविटी देगा मैरिज बॉन्डिंग के अंदर भी, एक मेलिफिक प्लैनेट लॉन्गेविटी देगा अगर 8th में है। एक मेलिफिक प्लैनेट वो स्पॉइल नहीं करता किसी को भी, और वो भी पर्टिकुलरली जब सिग्निफिकेटर है उस हाउस का। अगर 2-3 मेलिफिक यहाँ एसोसिएट हो जाते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए सैटर्न और मार्स का ही होता, ये नहीं होते मरकरी वीनस, then it was bad for the marriage because this is the strength of marital bond also. But even if it is योग कारक? हाँ जी, even if it is योग कारक तब भी बैड होता है? बट जैसे ही 2 मेलिफिक हुए फिर तो खराब हो जाता है हाउस। ओके, क्लियर नाउ सर। हाँ, एक मेलिफिक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही 2 मेलिफिक हुए, दैट हाउस विल गेट डैमेज्ड। So in this instance, uncle, I guess the Venus aspect is helping the Saturn. Yeah, because Venus is aspecting its own sign. Mercury is also aspecting this, which is Lord of 9th house. So yes, and Mars is also aspecting, uncle. Mars is a negative aspect because ये malefic planet है. But उसको हम बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि मरकरी वीनस का भी एस्पेक्ट है, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ज्यादा है नेगेटिव एस्पेक्ट से। तो this house is not bad actually. This house is good as far as longevity is concerned, marriage is concerned. This is okay. And then, uncle, Lord of 1st and 7th house are together in the 2nd house. इसका कोई signification होता है? It's a good, it's a Raj Yoga, and particularly from the finance point of view, it's a good position actually. I see. Yeah. And Ketu in the 9th house? Ketu in the 9th house makes you more spiritual. I see. And it has aspect of Sun, Mars, and Jupiter. Also, not only Sun, Mars, it has an aspect of Mars. It has an aspect of Sun.
And Jupiter. सन, हाँ जुपिटर तो सेविंग है, बट 2 मेलिफिक का इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर, सन एंड मार्स। अनिल जी, मार्स और वीनस भी योग कारक हो गए। मार्स और वीनस योग बना रहे हैं, फर्स्ट और 7th हाउस के इकट्ठे कंजक्ट हैं ये भी। हाँ, तो इसे गुड राजयोग यू कैन से। सो दैट मींस कि मार्स भी इस केस में 8th हाउस को स्पाइल नहीं करेगा। नहीं, जहां तक 8th हाउस का सवाल है, योग कारक नहीं हुआ, दिस कॉम्बिनेशन इज मेकिंग ए योग, दैट्स ऑल। But as when we will see the aspect, not as a yoga, we will see the aspect of Mars, Mercury, Venus separately. उसको हम ऐसा नहीं देखेंगे कि राजयोग किसी हाउस को देख रहा है, राजयोग कभी हाउस को नहीं देखता। अच्छा अनिल जी, वन को जब ये योग बना रहे हैं तो इनकी दशाएं अच्छी होंगी। बिल्कुल, ओके, वो तो हो गई। So just to clarify one more time, sorry uncle, ये योग कारक का मतलब ये हुआ कि if the lord of a quadrant and trine are together, when they are together they make a rajyog. It's not a yog karak, we don't call it a yog karak, it's a rajyog. Acha, and then what is the yog karak, uncle? Yog karak is the Saturn, which when any planet is the lord of quadrant as well as trine. So in this case the Saturn is the lord of 4th house and the 5th house. Got it. One is quadrant, one is trine, so it becomes a yog karak, and yog karak is better than exalted planet. Understood, uncle. Understood. Very clear. इसमें राशि किरण तो कम है, uncle? हाँ, राशि is 15.51. It's not high, but as I was telling that there is no planet in the Kendra, no planet in the Trikon, so it indicates only a lot of struggles in the life. Life is not smooth. And particularly when you are seeing that this house is badly afflicted, this house is badly afflicted. And these are very important houses for prosperity. But in spite of so much affliction, but somehow these houses are getting protection also. इसका मतलब problem तो बहुत है life में, but कुछ ना कुछ solution भी है. But problem तो face करनी पड़ेंगी, उससे तो नहीं बच सकते. Understood, uncle. Even the 2nd and 3rd houses, especially 3rd house, what's the status of the 3rd house here, uncle? 3rd house is good because ये उपाचय स्थान है, जुपिटर अपने साइन में है और सन और राहु ये 2 का एफ्लिक्शन भी है, इसको जो है तो नॉर्मल है, नाइदर गुड नॉर बैड, क्योंकि जब भी एक से ज्यादा मेलिफिक का इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी भी हाउस के ऊपर तो थोड़ा सा नेगेटिव तो हो ही जाता है। Understood. And लग्न की क्या स्टेटस कहेंगे आप इस हॉरोस्कोप में, अंकल? वीनस की क्या स्टेटस हुई लग्न की? हाँ, लग्न यहाँ पर है वीनस। लेट अस सी नवांश एंड दशांश आल्सो, दैट वी हैव नॉट सीन एक्चुअली। यस, वीनस वर्गोत्तम है नवांश में। हाँ, ये देखिए, ये नवांश में वीनस वर्गोत्तम हो जाता है। नवांश में वीनस जो है वो वर्गोत्तम हो गया, तो नेचुरली वीनस बिकम्स ए स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हियर एक्चुअली। वीनस बिकम्स ए स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। और इसमें जो लग्न का लॉर्ड है वो यहाँ पर है, इस वेल प्लेस्ड, और कोई बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन नहीं है एक्सेप्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं 9th हाउस के ऊपर। 9th हाउस के ऊपर अगेन सन, सैटर्न, राहु का एफ्लिक्शन है, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव है। वो लग्न से भी लग रहा है, जो कि 5th और 9th हाउस दोनों ही बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है। हाँ, और दशांश में देखें अगर जुपिटर उच्च का हो गया। दशांश में लग्न की क्या पोजीशन है? लग्न जो है वो लॉर्ड अच्छा वेल प्लेस्ड है और सन भी वेल प्लेस्ड है। यहाँ पर आप देखिए सन इज आल्सो वेल प्लेस्ड। तो दशांश चार्ट में तो नेचुरली इट्स रियली गुड एक्चुअली फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि दोनों ही स्ट्रांग है, लग्न भी स्ट्रांग है और सन भी स्ट्रांग है यहाँ पर। और लगन को जुपिटर भी देख रहा है, लग्नेश भी देख रहा है। हाँ, तो लग्न इज वेरी स्ट्रांग यार। लग्न मार्स का भी एस्पेक्ट है, जुपिटर का भी एस्पेक्ट है, मार्स अपना साइन है और सन इज वेल प्लेस्ड। सो फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स रियली गुड हॉरोस्कोप। बट जो हम ये देख रहे थे कि यहाँ पर कि कुछ प्लैनेट जो है वो इसमें especially Jupiter and Mercury look weak, uncle. Sun is weak, slightly weak actually.
then these two planets are strong, particularly this Moon and Mars. जुपिटर But भी weak but other planets are strong. Sorry, weak actually. So except these two, Moon and Mars, other planets are weak. So जो लाइफ में मिलना चाहिए या जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं मिलता. एंड अदर थिंग इज की बिकॉज 5th and 9th हाउस आर वेरी अफ्लिक्टेड, तो प्रॉब्लम बहुत हैं, हार्डल्स बहुत हैं और सारी प्रॉब्लम्स को फेस भी करना पड़ेगा. बट समहाउ उनके ऊपर कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स यू आर एबल टू कैरी ऑन. तो वो चीज इंडिकेटेड है. बट फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज रियली दशांश चार्ट इज सपोर्टिंग एक्चुअली. दैट इज अ वेरी गुड पोजीशन. सर. ये दशांश में जो जुपिटर उच्च का है तो ये अच्छा है. हाँ, फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू. दशांश इज ओनली फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है, मतलब इसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलने चाहिए. अब लेट अस सी कि जहां तक प्रोफेशन का सवाल है, इस समय जुपिटर की दशा ऑपरेट हो रही है और जुपिटर में सन है 29 जून 21, 29 जून 21 और उसके बाद मून का पीरियड आएगा. तो ये जो जुपिटर सन का पीरियड है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि सन इज द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, जुपिटर उसे देख रहा है, जुपिटर उसको देख रहा है. तो दिस पीरियड इज रियली गुड. आई डोंट नो भावना, प्रोफेशन में क्या कुछ इसमें कुछ हुआ है क्या चेंज? नहीं, अभी तो चेंज नहीं हुआ अंकल, बट प्रमोशन का होगा 2 साल में, तो वो था. और अभी थोड़ा सा lot of positive things are happening, but at the same time I guess because थोड़े enemies भी बन रहे हैं. नहीं, बट मुझे लग रहा है कि जून से पहले the results should be really good as far as profession is concerned. Promotion भी मिलेगा and you may get some other opportunity also. You think a change is likely, uncle, before June? हाँ, change is there, but don't change during this period. जब मून का पीरियड ऑपरेट होगा, मून के पीरियड में नहीं चेंज करना चाहिए. Why so? नहीं, because moon is placed in the 8th house. I see. So that may not be good, but before June, I think because it's such a good time actually, so you should get some good opportunity also. Uncle, actually the likelihood is in 2 years promotion का. नहीं, 2 years कब है? 2 years मतलब आज से 2 साल, मतलब it'll be 22 और 23 का बोल रहे हैं, 23 का बोल रहे हैं. 23 तो अच्छा है. मार्च का जब पीरियड होगा तो दैट इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि मार्च इज आल्सो प्लेस्ड इन द 10th हाउस. बट दिस पीरियड फ्रॉम जून 21 टू अक्टूबर 22, ये मून का पीरियड, ये बहुत अच्छा नहीं होगा प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये अच्छा नहीं होगा. अच्छा, नहीं होगा. In what manner, uncle? May have to face lot of mental tension and lot of problems. I see. क्योंकि एक तो वैसे भी 212 पोजीशन हो जाती है इनकी यहाँ पर दशमान चार्ट में, और मून का प्लेसमेंट जो है वो 8th हाउस में है, which is not good actually. Understood. तो और उसके बाद फिर अंकल लाइक्लीहुड क्या है फिर जब मार्स की अंतर्दशा आएगी? मार्स तो बहुत अच्छा है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. मार्स क्योंकि यहाँ 10th हाउस में प्लेस्ड है दशमान चार्ट में, और नेचुरली जब मार्स की अंतर्दशा आएगी तो उसमें रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे. टेंशन तो बढ़ी गई है, ऑलरेडी बढ़ गई अंकल काम पे. बट इसमें मून में ज्यादा हो जाएगा. इसमें जो मून का सब पीरियड होगा इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होंगी. कुछ कर सकते हैं अंकल जस्ट टू गिव रिलीफ? मून का उपाय करिए उस टाइम. वाइट का दान. हाँ, व्हाइट चीज का मंडे के दिन आप दान करेंगे तो फायदा होगा उसका. अच्छा. हाँ, बट जब हम प्रोफेशन, हाँ अनिल, जब हम प्रोफेशन देखते हैं तो 6, 8 और 2, 12 लग्न चार्ट भी देखते हैं और प्रोफेशन का चार्ट भी देखते हैं. दोनों में खराब करता है वो? दोनों. ओके. अगर प्रोफेशन हम देख रहे हैं तो नेचुरली हमें D10 चार्ट में भी देखना पड़ेगा. और ऐसे मैरिज देख रहे हैं तो लग्न और D9 देखना पड़ेगा. बिल्कुल, उसमें हम लग्न और D9. संतान हम देख रहे हैं तो लग्न और D7 चार्ट देखना पड़ेगा. सर D10 का 10th हाउस नहीं देखना चाहिए हमें? D10 का 10th हाउस. हाँ, that is very important because 10th हाउस में जो भी planet placed होते हैं, they are very important from career point of view. तो सर जैसे इनका जो अभी हमने देखा उसमें D10 में सैटर्न और मार्स 2 मेलेफिक थे,
तो हाँ। उससे कुछ नहीं, उससे नहीं इम्पैक्ट नहीं होता। होगा? मैंने बताया था ना कि हर डिविजनल चार्ट को देखने का तरीका अलग है, हाँ जी। और यहाँ पर इट डजंट मैटर वेदर इट्स अ बेनिफिक और मैलिफिक प्लैनेट. Any planet placed in this 10th house, it becomes a very important planet from profession point of view. और जब भी इनके दशा ऑपरेट होगी तो that will be a milestone in the career. ओके सर। तो इसलिए दशा, जब भी जो दशा, not अंतर्दशा, is it अंकल? हाँ, जो भी दशा, अंतर्दशा मीन्स कि जब जो भी ऑपरेट होने वाली है, मार्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो मार्स ही ऑपरेट होगा. आपके हॉरोस्कोप में देखिए मंगल इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो जुपिटर मार्स के पीरियड में मार्स विल ऑपरेट. तो यही है कि लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, बट यू हैव सेफगार्ड आल्सो, प्रोटेक्शन भी है. अंकल, दी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा? हाँ, हेल्थ के, लेट्स सी. कोई ऐसा सीरियस तो कुछ नहीं है, क्योंकि अभी जुपिटर का पीरियड चल रहा है और उसके बाद सैटर्न का पीरियड भी आएगा. तो ऐसे एक्सेप्ट कि ये जुपिटर राहु में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं, बट नथिंग वेरी सीरियस एक्चुअली. अंकल, सैटर्न के पीरियड कैसा रहेगा इस हॉरोस्कोप में फिर? सैटर्न का तो अच्छा रहेगा ना, सैटर्न तो बहुत अच्छा रहेगा. And does it indicate that there's a likelihood of doing something on my own, uncle, in this horoscope then? Because I've been doing a job, I've never done anything on my own. नहीं, उसमें नहीं लगता नहीं है. वो कैसे अंकल? आप फर्स्ट 7th हाउस से देख रहे हैं? 7th हाउस से बेसिकली जो है. तो अगर 7th हाउस को भी देखेंगे तो इसका लॉर्ड अपने से 8th हाउस में चला गया, पहली चीज तो. और Correct. इसके ऊपर सैटर्न का भी इन्फ्लुएंस है, मरकरी वीनस का भी है, बट सैटर्न का भी है. तो ऐसा इंडिकेट नहीं करता कि बिजनेस में या अपना काम करने से फायदा होगा. I see, uncle. So job से ही फायदा, job का income is indicated by the 2nd house, is it? हाँ, जॉब से ज्यादा बेटर है एक्चुअली. I see. और अंकल, speculative gains? हाँ, that we see from this 5th house. तो 5th हाउस की पोजीशन देखिए, जैसे हमने कहा कि मार्स भी देख रहा है, सैटर्न भी देख रहा है, केतु भी देख रहा है. तीनों मेलिफिक प्लैनेट उसको देख रहे हैं. तो बहुत अच्छा नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पेकुलेटिव गेन्स एक्चुअली. I see. Saturn in the 8th house, uncle, is longevity, I guess, but is also can take away mobility. No. If Saturn was a bad planet, it was a malefic planet, then that possibility was there. But Saturn is really well placed here. Saturn is a planet which gives you the position here. Saturn is the best planet. So naturally, when Dasha of Saturn will come, it will be better than Dasha of Jupiter. अच्छा. But except for the first period of Saturn अंतर्दशा. शुरू में जब चेंज होता है तो नेचुरली थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा. अंकल, क्या लगता है आपको, ये वापस यूएस जाने के चांसेस हैं क्या? मार्स के पीरियड में पॉसिबिलिटी है, अभी तो नहीं है. मार्स अब अंतर्दशा. गॉट इट. सर, ये कैसे देखा आपने? मार्स के पीरियड में है. दशमांश चार्ट में जो मार्स की पोजीशन है, दैट इज वेरी गुड फ्रॉम कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू. राइट. और सर, यहाँ सैटर्न योग कारक है, इसलिए अच्छा है इस हॉरोस्कोप में. बिल्कुल योग कारक है, और ये 10th हाउस को देख भी रहा है. चाहे वो खुद 8th हाउस में हो, लेकिन उससे उस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. 8th हाउस में सैटर्न खराब नहीं होता, क्योंकि कारक है. कारक है. हाँ, तो इट्स नॉट बैड इन द 8th हाउस. सर, सैटर्न का कौन पोजीशन सबसे अच्छा होता है? जैसे इधर 8th का पोजीशन बहुत अच्छा है. कौन नहीं, it all depends on the what is the placement of Saturn in your horoscope. Let us say Saturn is placed in the Lagna. It can make or mar a person. आपको बिल्कुल ही खराब भी कर देगा और बहुत अच्छा स्टेटस भी मिल जाएगा. तो ये डिपेंड करता है कि Saturn आपका कैसा है हॉरोस्कोप में. अनिल जी, ऐसे सर, अगर सैटर्न अगर
अरे this होगा कारक भव को खराब नहीं करेगा, क्या चीज? कारक अपने भव को खराब कर देता है। इसमें क्या है? कितना ऐसा नहीं है, ऐसा अगर होने लगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैरिज, ओके, नॉट फॉर अदर हाउसेस। ठीक। अंकल इसमें 11th हाउस पे जुपिटर और राहु का की एस्पेक्ट है, सो क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे आप? 11th हाउस इज गुड एक्चुअली, क्योंकि जुपिटर देख रहा है ना उसको, करेक्ट। तो दैट इज गुड एक्चुअली। चलो अच्छा है ना, अच्छा है। अनिल जी बोलता है राहु का भी But राहु 11th हाउस गुड। और राहु ये जो 5वें स्थान में तो बैठा हुआ है राहु, तो ऐसा खराब नहीं है। सोच रही थी कि पढ़ाई और जुपिटर का आप देखिए ना कि एक तो 7th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है मैरिज का, 9th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है, 11th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है, तो जुपिटर तो बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है इस केस में। और उसमें देखा भी हमने अभी 10वांश में देखा हमने, वो एक्सॉल्टेड हो गया था। 9वांश में क्या था? 9वांश में यहाँ पर चला गया 12th हाउस में, तो ये इतना अच्छा नहीं है, बट 10वांश में बहुत अच्छा है। 10वांश में तो ये 9th हाउस में एक्सॉल्टेड था, तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है। और जुपिटर अगर 12th हाउस में चला गया अंकल नवांश में, तो does that indicate a loss of some sort then? नहीं, लॉस नहीं इंडिकेट करता एक्चुअली में, बट थोड़ा वीक तो हो ही जाता है थोड़ा सा। अंकल एक क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? दिस इज एज यू नो इज माय हॉरोस्कोप राइट? तो मेरी मदर के साथ जो हुआ, मतलब शी वाज सो सिक फॉर 25 years, a loss of hers, so वो कैसे इस पे इंडिकेटेड है? How do you see that from my chart? Can you tell? दशा क्या थी उस टाइम? अंकल वो तो when she fell ill, it was I think either राहु और राहु की दशा थी, उससे भी पहले की दशा थी। And she went, मेरा जो फादर मदर दोनों जुपिटर में गए हैं, जुपिटर की दशा में दोनों गए। पेरेंट्स के लिए हम जो द्वादशांश चार्ट देखते हैं, ये वाला चार्ट, द्वादशांश। अच्छा, मून तो इसमें लग्न में है। हाँ, मून जो है देखिए क्या है पोजीशन, डेबिलिटेटेड है लग्न में, आई गेस। लग्न में नीच का है जुपिटर, सॉरी मून जो है। करेक्ट। और उसमें कहाँ था ये लग्न चार्ट में? लग्न चार्ट में 12th हाउस में था। लग्न चार्ट में भी 12th हाउस में था। सॉरी। और यहाँ पर नीच का है, और सन उच्च का है, वीनस अपने घर का है। और देखा जाए थोड़ा सा तो हम ये कह सकते हैं कि जो मून है नीच का तो है ही है, इसके अलावा जो मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस ज्यादा है इसके ऊपर। देखिए मार्स तो इस साइड में है ही है, फिर सैटर्न को हम देखें तो सैटर्न 7, 8, 9, 10 सैटर्न का एस्पेक्ट यहाँ पर है। सन को देखें तो सन का भी एस्पेक्ट यहाँ पर है। केतु को देखें तो केतु भी मून को देख रहा है, तो मून इज badly afflicted. So from that I think point of view we can say कि मदर की जो पोजीशन थी वो यहाँ पर जो द्वादश चार्ट है वहाँ मून जो है is badly afflicted. I see. सर जो ट्रांजिट्स होते हैं वो हम डिविजनल चार्ट्स में भी देखते हैं। And even 4th house, if we see 4th house also it is पाप के त्रियोग में है, और इसके ऊपर भी सारे मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, जैसे कि मार्स इसको देख रहा है, सैटर्न इसको देख रहा है, और दोनों के बीच में पाप के त्रियोग है एक्चुअली। तो उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं द्वादश चार्ट से। और ऐसे मतलब जो लॉस होना ऑफ योर पेरेंट्स इन जुपिटर महादशा अंकल, ऐसा भी होता है क्या? आई मीन आई थॉट जुपिटर वुड गिव प्रोटेक्शन बट नॉट रियली। नहीं, ऐसा नहीं है कि जुपिटर में, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द हॉरोस्कोप ऑफ अदर पर्सन आल्सो। ऑफ कोर्स। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जुपिटर में कुछ लॉस नहीं होगा, वो तो पॉसिबल है उसकी चीजों का तो सबका। ठीक है। और ट्रांजिट भी हम देखते हैं, गोचर वगैरह कैसा चल रहा है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी तो जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है अप्रैल में, इट विल गो इनटू it'll leave its sign of debilitation. यहाँ पर आप देखिए जुपिटर जो है लग्न में, जुपिटर यहाँ पर आ रहा है। करेक्ट।
तो दिस इज आल्सो ए गुड साइन एक्चुअली कि ये 5th हाउस है, दिस इज 8th फ्रॉम द 10th हाउस, तो दिस इज द हाउस ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज आल्सो। तो जैसे ही ये ट्रांजिट होगा, ये ट्रांजिट हो रहा है 6 अप्रैल को, तो 6 अप्रैल और जून तक का टाइम तो आपके लिए मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है अंकल, प्रमोशन की लाइक्लीहुड अभी तो नहीं है अंकल, 2 साल के बाद मे बी सम अदर अपॉर्चुनिटी और समथिंग, बट अच्छा होना चाहिए इस पीरियड। बच्चों का कैसे ठीक लग रहा है इसमें अंकल, इस हॉरोस्कोप से, एक्सेप्ट दैट द 5th हाउस इज डिफिकल्ट? हाँ, 5th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस तो जैसे लॉर्ड इसका तो शनि है या योग कारक है, बट एफ्लिक्टेड भी है, तो दोनों ही चीजें, अच्छा बुरा दोनों ही है उसमें। And 10th house is relatively sorry, the 4th house is relatively free of affliction. जी, कहेंगे क्या? 4th हाउस तो इसके ऊपर कोई अफ्लिक्शन नहीं है, 4th हाउस के ऊपर कोई अफ्लिक्शन नहीं है, और इसका लॉर्ड भी ठीक है। तो फिर ये अंकल मेरा बाहर का ट्रैवल कैसे हुआ फिर? How did I leave the country? एक तो 10th का लॉर्ड ये इसमें 12th हाउस में, 10th का लॉर्ड इन द 12th हाउस, एंड दीज प्लैनेट्स आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एक्चुअली। ये 9th हाउस वगैरह भी जो है वो भी एक रोल प्ले करते हैं। और ऐसा नहीं है कि 4th हाउस अफ्लिक्टेड नहीं है, 4th हाउस भी मार्स से तो अफ्लिक्टेड है ही है, सैटर्न मार्स का तो अफ्लिक्शन है ही है, और 4th का लॉर्ड 8th हाउस में जाना और अफ्लिक्टेड विद मार्स, तो ऐसा नहीं कि अफ्लिक्शन नहीं है, अफ्लिक्शन तो है। Afflicted because Mars is aspecting Saturn. हाँ, and it has gone to the 8th house. Correct. Understood, uncle. And marriage point of view? हाँ जी, अंजलि जी पूछिए, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, आप ये कंप्लीट कर लीजिए, मेरा जनरल क्वेश्चन है। हाँ बताइए। Marriage point of view, uncle, the 8th house is strong, so there's longevity of the bond. हाँ, मैरिज में तो प्रॉब्लम नहीं लगती, और देखिए जब जुपिटर वगैरह देख रहा है 7th हाउस को, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। 9th हाउस को भी देख रहा है, 7th हाउस को भी देख रहा है, और 11th हाउस को भी देख रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओनली इंडिकेट्स कि जो 5th 9th हाउसेस हैं ये अफ्लिक्टेड भी हैं, तो प्रॉब्लम तो है लाइफ में, और केंद्र में कोई प्लैनेट नहीं है। तो अंकल फाइनेंशियल लॉसेस का इसमें कहाँ से देखेंगे? फाइनेंशियल लॉसेस नॉट फ्रॉम स्पेकुलेशन, बट कि एकदम से सारा पैसा चला गया। किस पीरियड में? ओल्ड एज में। नहीं, ओल्ड एज में तो देखिए 2nd हाउस है हमारा फाइनेंसेस का, वेल्थ का जो है, तो दिस इज दैट हाउस, दिस हाउस एक्चुअली, तो ये हाउस तो ठीक है आपका, ये ठीक है, और वीनस वर्गोत्तम भी है। हाँ, वीनस वर्गोत्तम भी है उसमें, तो ये पैसा जाने वाला कोई नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे 2nd हाउस का लॉर्ड अगर इसमें चला गया 12th हाउस में, या 12th का इसमें चला गया, या लग्न का लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, तब प्रॉब्लम आती है कि सडनली कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, इसके जो अगर वो बल देखें हम हाउसेस के बल अंकल, तो इसमें 12th हाउस काफी स्ट्रॉन्ग आता है, और अष्टक वर्ग भी देखने में। हाँ, तो अगर 12th हाउस स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो इसीलिए दैट फॉरेन सेटलमेंट इज देयर। लेट अस सी षडबल। हाँ, तो 12th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दैट्स व्हाई इट इंडिकेट्स सक्सेस इन द फॉरेन लैंड एक्चुअली। अगर ये 12th हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं होता फिर परेशानी होती है बाहर। और इसमें फिर 4th हाउस देखिए वीक आ रहा है। 10th हाउस कितना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, स्ट्रॉन्गेस्ट इज द 10th हाउस, देन 7th हाउस आल्सो इज स्ट्रॉन्ग, तो ये हाउसेस तो स्ट्रॉन्ग है, तो प्रॉब्लम नहीं है ऐसी जो है। अंडरस्टूड। और 9th हाउस भी स्ट्रॉन्ग है, 9th हाउस भी भाग्य स्थान है, वो भी ठीक है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक वाले कोई चीज नहीं है इसमें। अंकल 5th हाउस वीक है, लेकिन एजुकेशन, हायर एजुकेशन तो हो गई है काफी अच्छी।
हाँ So then does it indicate it's about the impact will be on नहीं, children? education we will see from D24 chart actually. I see. तो ये तो 5th हाउस की वीक पॉइंट का हम कहाँ से इंडिकेशन लेंगे कि किस चीज में वीकनेस आ जाती है? हायर एजुकेशन का जैसे ये 5th हाउस तो बताया योग कारक है ही है, और थोड़ा सा अगर हम D24 को भी देखें, लेट अस सी क्या है चतुर्विशांश। ये तो वही चार्ट आ गया ना, ये दूसरा है नहीं, डिफरेंट चार्ट। हाँ डिफरेंट है उनका, डिफरेंट है। हाँ तो इसमें देखिए क्या पोजीशन है। Moon is debilitated here also, and Lagna is quite afflicted. देखिए लग्न का लॉर्ड, सॉरी 9th हाउस का लॉर्ड, which is the house of higher education also. It is in the Lagna, so it makes a very powerful yog, Raj Yog. Whenever there is a even lord, if it is debilitated, even कोई भी then, हो, हाँ, even if it is debilitated, but if lord of 9th is in the Lagna, it's a very powerful position. And you see the position of Jupiter also. Jupiter is the lord of 5th house, again in the Kendra. So again, this is also a planet which gives you the education also. तो वो भी इसमें चला गया, तो एक ये भी बहुत अच्छा एक पोजीशन है इसकी जो है। तो ये इंडिकेट करता है 9th हाउस और 5th हाउस का स्ट्रांग होना, तो दैट इंडिकेट्स द हायर एजुकेशन आल्सो। So if then in Lagna chart the 5th house is impacted, uncle, then therefore it means that the children के ऊपर impacted, नहीं दोबारा बोलिए। अगर 5th हाउस afflicted है Lagna chart में और एजुकेशन सही रही है, हायर एजुकेशन सही रही है, then does it mean कि then the affliction will impact the children? नहीं ऐसा क्यों होगा? तो चिल्ड्रन भी देखते हैं। हाँ नहीं, चिल्ड्रन एफ्लिक्टेड तो मैंने कहा ना कि प्रोटेक्शन भी तो है ना इसका। जब लॉर्ड दिख रहा है तो ये राजयोग बन जाता है। जब शनि इसको देख रहा है तो इट मेक्स राजयोग। ऐसे ही जुपिटर इसको देख रहा है तो इससे दीज आर द प्रोटेक्शंस व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय दीस टू प्लैनेट्स। अगर ये नहीं होते प्रोटेक्शन फिर तो नहीं होता। समझ गए अंकल, समझ गए। अंकल एक बार अष्टक वर्गा देख लीजिए प्लीज, सो दैट आई नो हाउ टू रीड। ये है अष्टक वर्ग। So here also you see 12th house is very strong, 11th is also good, 6th is also good, ये 10th is also very strong, 10th is also, so ज्यादा उपाचय स्थान जो है वो सारे strong हैं। तो it's a very positive thing because you make your efforts actually हर चीज में जो है। अगर ये उपाचय स्थान strong नहीं होते तो जो प्रॉब्लम थी आपके साथ वो you could not have tolerated actually। तो उपाचय स्थान सारे अच्छे हैं इसमें। सर 12th का जो इतना स्ट्रॉन्ग है उसका क्या इंटरप्रिटेशन है? सक्सेस इन द फॉरेन लैंड एक्चुअली वो कह सकते हैं हम इसमें। ओके, तो इसमें अंकल अष्टक वर्ग में वीक कौन सा हुआ हाउस आपको लग रहा है? हाँ देखिए, पहले लग्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 7th हाउस वीक है, 9th हाउस वीक है थोड़ा सा, तो वो तो इंडिकेटेड था ही उसमें जो है, बट particularly this upachaya sthan they are very strong. Understood uncle. और अंकल इसमें और कुछ देखेंगे फिर इसमें अष्टक वर्ग चार्ट से फिर? बस यही houses का, then these houses only tell you the transit actually. I see uncle. तो अंकल then मून का केंद्रम योग बन रहा है in the लग्न चार्ट। ये यहाँ पर। हाँ, मून is not yes, लग्न में आसपास कोई नहीं है। नहीं, जुपिटर देख रहा है ना 11वें घर को। नहीं 11वें को देख रहा है, मून को थोड़ी देख रहा है। नहीं तो पास में आ गया। जुपिटर से मून और जुपिटर एक दूसरे से केंद्र में हुए ना सर? हाँ वो नहीं, हाँ मून और जुपिटर। सर गज केसरी योग भी है D1 में। नहीं उसमें मैं सोचा नवाज शहर में क्या पोजीशन, वो मैं ले इन लोगों। नवांश से क्या देखते हैं अंकल? ये नवांश में जनरल पोजीशन मून की देख रहा था मैं कि मून जो है यहाँ पर इस एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर है मून के ऊपर यहाँ पर नवांश चार्ट में, तो इसलिए उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। Got it.
No. गज केसरी कैसे बोला? I think somebody said गज केसरी योग. हाँ, मेन moon मेन and चार्ट में जुपिटर और मून केंद्र में है एक दूसरे से, ये देखिए लग्न चार्ट में लग्न चार्ट में। मून कहाँ ये है, जुपिटर यहाँ पर है, तो आपस में एक दूसरे से केंद्र में है, आपस में एक दूसरे से केंद्र में है। तो ये गज केसरी योग which is a yoga for prosperity in the life. So uncle, एक चीज मैं पूछ सकती हूँ, क्योंकि Jupiter in the from a house perspective will move to the 4th house because positive sign लगा हुआ है इसमें. हाँ, तो does that moon की गज केसरी योग के लिए कैलकुलेट फिर भी कर सकते हैं? नहीं, योग will depend on this only, lagna chart. I see. But So as far as results are concerned, you get the result of 4th house. Understood. So Gaj Kesri Yoga is when Moon and Jupiter or Moon They and are in quadrant with each other. with each other. Understood. And that indicates prosperity. That indicate prosperity. So we also take it for Moon and Venus, uncle? Gaj No, Kesri ke liye? that is only for Moon and Jupiter. Moon and Jupiter actually. Understood. And I think for the information of everyone, Bhavna is highly qualified. I think Bhavna, you can tell about yourself. I'll switch on my video also. Room mein बैठी हुई थी. I've got a chartered accountancy and then I went to get my MBA in the US. और उसी वजह से मैं फिर बाहर settle हो गई. US में भी from where you did MBA? I went to Wharton, University of Pennsylvania, and फिर मैंने McKinsey में काम किया कोई 12 साल और फिर Novartis Pharmaceutical में काम किया और अभी भी मैं कंसल्टिंग फर्म में काम कर रही हूँ सिंगापुर में, लेकिन मेहनत बहुत करती हूँ. मेरी शनि भगवान मुझसे मेहनत बहुत करवाते हैं. She is very hard working and I think she has faced a lot of problems in the life and carried out very well also. She has done all the responsibilities of the family, which I think we cannot expect from any person. Sir, it is very glad that we get to meet such people through you. Everybody should get inspiration from her actually. The way she, I think, took care of the father and the mother actually. So nice meeting you. She used to travel every month from US. Wow. Just for the sake of father and mother actually. And she got transferred also to Singapore only because of this, so that she can be here in India also. So nice to know this, sir. Thank you. So nice to meet you, Bhavna ji. Thank you, Anjali ji. It's but some God is watching out for me despite my 10th house, my 9th house affliction, because कोई रास्ता मिल ही जाता है सारे संघर्ष में. Your parents, I think, their blessings. Their blessings. Their blessings. Their blessings. And Anjali is also highly qualified. अंकल मैंने तो इससे पूछा था कि अपना बिजनेस करूंगी तो मैं एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगी, अपना खोल लूंगी कंसल्टिंग, पर आप कह रहे हैं कि जॉब ही करूं बेटर. नहीं, एस्ट्रोलॉजी इज अ डिफरेंट थिंग, कंसल्टेंसी इज अ डिफरेंट थिंग एक्चुअली. And you have this association of Mercury with this 8th lord, so you can learn and you can do the counseling also. This is my hope, uncle. When I'm older. सर 8th का सैटर्न सर ओकल्ट में भी लेके जाता है. हाँ बिल्कुल, और मरकरी का भी है. वो बहुत बढ़ जाता है एस्ट्रोलॉजी में जिनका 8th में अगर सैटर्न है तो. बिल्कुल बिल्कुल. तो इस से गुड पॉइंट. और केतु भी जहाँ बैठा है वो मोक्ष का दाता लक में बैठा है, तो काफी इसमें सपोर्ट रहता है. 9th 11th का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ अंजलि जी, आप कुछ पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रही थी, जनरल क्वेश्चन है सर, जो हम ट्रांजिट्स देखते हैं वो डिविजनल चार्ट्स के ऊपर भी देखते हैं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो जिस साइन में भी ट्रांजिट भी देखते हैं, दशा भी देखते हैं, सिर्फ हम योग वगैरह नहीं देखते. ओके, तो जिस साइन के ऊपर वो जो प्लैनेट है उसी साइन को हम डिविजनल चार्ट में भी देखेंगे? राइट, बिल्कुल करेक्ट. ओके सर, ओके. Thank you so much, Bhavna. Thank you very much. Thank you. Any other question? General thing we can discuss because उसका time नहीं है और उसको discuss करने का. But or if you want, we can discuss also. We can start.
Sir, one general question to everyone. Has anyone started doing the consultations? Yeah, I tell you that she is not there, Neha. Okay. Today she is not there actually. She is also chartered accountant working with some multinational, and she has already started consultancy. She got a very good name and fame in the area. She Sir, keeps on sending me all the appreciation she is getting actually, and she just started getting money also. So sir, for your information, even I have started. And there are some 3-4 people within my circle who have they are having so much faith somehow, even though I am not very well versed with the subject, but for everything they have started consulting me now. So wonderful. At least I think even Anvesha is doing well. So nice to know, sir. So nice. हाँ, so some people are really doing well. और ये राजेश जी वगैरह तो हैं ही हैं, ये तो पहले से ही महारथी हैं. अरे सर, आपका आशीर्वाद है सर. हाँ, तो ये अच्छा है. Some people are really, Neha, I was really surprised. She is doing so well. So nice to know this, sir. Yeah. अनिल जी, अब 1-2 जन्म कुंडलियां सेकंड मैरिज के लिए कुछ बताइएगा. हाँ, वो सुधीर जी ने क्वेश्चन पूछा था अभी कि he is not there, but he has written actually कि we should know how to see the second marriage. अनिल जी, मैंने भी एक भेजा आपको जन्म पत्री उसके लिए, सेकंड हाउस. हाँ, तो मैं I will just take a horoscope actually. I think that will better explain. You see this horoscope. Let's talk only from marriage point of view. कि marriage point of view से इस horoscope की क्या position है? सर सेकंड हाउस को देखते हैं तो जुपिटर देख रहा है सेकंड हाउस को, अपने ही साइन को. और 4th 9th हाउस को भी देखते हैं. 9th तो देखिए यहाँ पर आप देखें कि वीनस देख रहा है सर 7th हाउस. 7th हाउस का सवाल है. वीनस अपने साइन को देख रहा है. इसके ऊपर एस्पेक्ट किसका है? सन का भी है और राहु का भी है. सन और राहु का एस्पेक्ट. सैटर्न का भी है सर. सैटर्न का भी है. तो सन, सैटर्न, राहु 3 प्लैनेट का जब एस्पेक्ट हो जाता है, हाँ, and these are all the planet which gives you separating tendency. And Venus also is a lord of 12th house. Venus also is a lord of 12th house. तो ये चारों जो separating tendency वाले planet हैं, वो इसको देख रहे हैं. Sun, Saturn, Rahu, and Venus. So all 4 planets they are having an aspect on this. But अगर हम उसकी बात करें डाइवोर्स वगैरह की, तो ये 8th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग. 8th हाउस के ऊपर कोई मैलिफिक नहीं है, जुपिटर है, और यहाँ पर इसको मरकरी भी देख रहा है. राइट, मरकरी इसको देख रहा है. बट इसको जरा नवांश चार्ट को देखें. इसका यहाँ क्या पोजीशन है? नवांश चार्ट में क्या पोजीशन है? नवांश चार्ट में आई टोल्ड यू दैट अनलेस लग्न इज स्ट्रांग यू कैन नॉट हैव अ मैरिटल हैप्पीनेस. तो लग्न की क्या पोजीशन है यहाँ पर? सर लग्न का लॉर्ड सारे मेलेफिक से इन्फ्लुएंस्ड है. या इट इज एसोसिएटेड विद ऑल मेलेफिक्स. कोई भी ऐसा मेलेफिक नहीं है जो लग्न को एफ्लिक्ट नहीं कर रहा, लग्न के लॉर्ड को एफ्लिक्ट नहीं कर रहा है. लग्न का लॉर्ड सन है, सन यहाँ पर है. इट इज हैविंग एन एसोसिएशन विद ऑल मेलेफिक प्लैनेट्स. और जुपिटर भी नीच का है, जुपिटर भी नीच का है. तो ये जो इंडिकेशन है कि नवांश चार्ट में कि इट्स नॉट ए गुड इंडिकेशन एक्चुअली, कि लग्न जो है वो मैरिटल हैप्पीनेस नहीं दिखती है नवांश चार्ट से. अब क्वेश्चन ये आता है सेकंड मैरिज का. Firstly, I tell you that this boy, he got married with a divorcee. He got married with a divorcee, and his wife died in 2018. और
2019, sorry, 2019. So now it's a question of second marriage, whether second marriage will take place or not. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो second marriage है वो हम लोग ये 7th house है, and what is the longevity of the marriage is to be seen from 8th house from the 7th house. 8th from the 7th house. So 8th from the 7th house is this one. Is this one. Mercury is placed here and Jupiter is having an aspect on this. और आप देख रहे हैं कि कोई भी malefic influence उसके ऊपर नहीं है, कोई भी malefic influence उसके ऊपर नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि second house is very good, so the person is likely to get married again, likely to get married again. और कब मैरिज होगी? अब मरकरी का पीरियड चल रहा है ये इसमें देखिए आप ये जो इस समय जो पीरियड चल रहा है अक्टूबर 20 से लेके अक्टूबर 21 तक, मार्च में मरकरी का पीरियड चल रहा है, मार्च में मरकरी का पीरियड. तो इसमें मरकरी के पीरियड में ही ऑलरेडी गॉट एंगेज्ड नाउ, अभी पिछले महीने में ही जो है, एंड ही इज गेटिंग मैरिड इन द मंथ ऑफ जून. और ये सेकंड मैरिज के बारे में बताता है. तो सेकंड मैरिज का जहां तक सवाल है वो इस हाउस से हम देखते हैं, 8th हाउस से. लेकिन अगर हमें सेकंड स्पाउस के बारे में देखना हो कि सेकंड स्पाउस कैसा होगा, वो हम किससे देखेंगे? 9th हाउस से. 9th हाउस से. थर्ड फ्रॉम दिस 7th हाउस, next to this first one actually. So that we see from this house कि स्पाउस की नेचर कैसी होगी वो हम इस हाउस से देखेंगे. बट सेकंड मैरिज के बारे में जब हम कहेंगे तो वो हम इस हाउस से देखते हैं. और ये हाउस अच्छा है तो इसका मतलब सेकंड मैरिज हो भी गई और उसी पीरियड में भी हो गई जो मरकरी का पीरियड इंडिकेटेड है इसमें जो है. और एक्सचेंज भी है यहाँ पर, आप देखेंगे जुपिटर और मरकरी का जो है वो एक्सचेंज भी है. बट इवन बिकॉज 7th हाउस अफ्लिक्टेड है और नवांश में पर्टिकुलरली जो पोजीशन है बहुत खराब है और जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम हुई है मैरिज में जो है. तो सेकंड मैरिज इज ऑलवेज टू बी सीन फ्रॉम द 8th फ्रॉम 7th, दैट इज द सेकंड हाउस. अगर ये पुरानी प्रॉब्लम है इसमें भी आएंगी क्या? हाँ जी, जो पहले जो अफ्लिक्टेड था फर्स्ट मैरिज में वो इसमें भी प्रॉब्लम आएंगी क्या? देखिए प्रॉब्लम तो नवांश इतना खराब है, नवांश इतना खराब है. I recently saw a horoscope. That person has got married 4 times, and all the 4 times it has resulted into divorce. क्योंकि नवांश में पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है और 7th हाउस भी afflicted है with all 4 malefic planets. तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो इंडिकेटेड है ही है क्योंकि नवांश इतना वीक है यहाँ पर. अनिल जी सेकंड मैरिज के समय नवांश वही देखते हैं, नो चेंज हाउसेस का? नहीं, नवांश तो वही देखेंगे, नवांश में मैरिटल हैप्पीनेस है या नहीं है. एक तो ऐसा होता है कि किसी जैसे कोई प्रॉब्लम है, सेपरेशन डाइवोर्स है, वो तो नहीं है क्योंकि ये 8th हाउस इतना स्ट्रांग है, यहाँ पर एक्सचेंज भी है, बेनिफिक का एसोसिएशन है, तो ऐसा डाइवोर्स वगैरह का केस तो नहीं है. बट ये एफ्लिक्टेड है तो ये उसकी हेल्थ को इंडिकेट करता है स्पाउस की. अब सेकंड जो है वो ये है, इसको हमें देखना पड़ेगा, बट ये इतना खराब नहीं है. मंगल है यहाँ पर, डेफिनेटली नीच का मंगल है और केतु उसको देख भी रहा है, बट मून जो है वो इसमें है तो इसलिए इतना वो ऐसा खराब नहीं है. जहां तक 7th बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड होता है तो डेथ भी हो सकती है क्या स्पाउस की? हाँ बिल्कुल, अगर लग्न आपका बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है तो नेचुरली लॉन्गेविटी तो हम उसी से देखते हैं. इवन इफ 8th इज ओके? 8th तो सेपरेशन डाइवोर्स इंडिकेट करता है कि 2 people are not able to live together. And death is from 7th? Death is from the लग्न. जैसे हम लग्न का देखते हैं अपने हाउस से, ऐसे ही 7th हाउस में अगर इसने इसने स्ट्रॉन्ग मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है तो वो इंडिकेट करता है उसमें. अंकल ये स्पाउस के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का किससे देखते हैं? 8th हाउस से. अपना जो एक्स्ट्रा मैरिटल देखते हैं हम अपने से 8th हाउस से देखते हैं.
अपना, अच्छा, और स्पाउस का अंकल? तो स्पाउस से 8th हाउस से। एंड उसमें राहु एंड अफ्लिक्टेड प्लैनेट्स होंगे मार्स के साथ। मार्स सैटर्न, पर्टिकुलरली मार्स सैटर्न राहु अगर एफ्लिक्शन है तो 7th से 8th हाउस। 7th से 8th हाउस, यही हो गया, यही वाला हाउस हो गया। और अंकल आपने बोला था सेकंड मैरिज की स्पाउस का नेचर फिर हम 9th हाउस से देखेंगे इस वाले केस? हाँ, ये इस हाउस से 9th हाउस। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू अनिल जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू जैन साहब। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। प्रणाम सर। प्रणाम।